Bismillahir Rahmanir Rahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Today I am going to discuss the paraphrase and reference to the context of the poem The Word is Too Much With Us, composed by William Wordsworth. Dear student, इसी पोएम के अंदर जो आपको याद हो, हमने इससे पहले जो पोएम डिस्कस किया था, जो मदर टू सन, माँ बच्चे को नसीहत करती थी, अगर वो याद है उसी में उसको रिकॉल करो, उसी तरीके से इंशाल्लाह हम इसी का भी पैराफ्रेजिंग और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या है पैराफ्रेजिंग में. Stanza number first, the word is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers, little we see in nature, that is ours, we have given our hearts away, our solid bone. इसी स्टेंजे की पैराफ्रेज मैंने पॉइंट्स में लिखा है और वो इस तरह है कि वी हैव एनफ वर्ल्डली थिंग्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी हैव एज मच थिंग्स एज वी नीड और वी कैन स्पेंड फॉर आवर लाइफ. और वो इस तरह इफ वी आर यंग और ओल्ड इवन टिल लास्ट एज. बट क्या हो रहा है, इफ वी स्ट्रगल एंड सिक विद मोर देन दीज थिंग्स, then there will be no permission because of this materialism, because of this materialistic approach which is very dirty. Clear? That was all about first stanza. Stanza number second is that my days have been a dream, yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none. In this paraphrase, what are the points? These are the points, and these are that it is the reflection, it is the sea reflection, that my days have been a dream, a kind of dream, yet if hope has flown away, if there is no flown away, it means that if it is in peace, if it is in peace and peace in the air, so what will be? So we actually do not appreciate these things. We want to go away from the beauty of nature, from the things which are just for us in this nature. वो क्यों इस तरह? Because हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाते हैं, हम मटेरियलिज्म मांगते हैं. तो उसी नेचर के हवाले से, उसी लाइट, उसी हवा, उसी समंदर के जो मुख्तलिफ किस्म के नखरे और सुरीली आवाज़ के साथ वो पानी का बहाव, दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन अस, उसी का हम पर किसी किस्म का असर नहीं है. देयर इज़ all about this thing. So these were the two stanzas. आइए ज़रा next slide की तरफ, next board की तरफ, जहाँ पर stanza number 3 और 4 की paraphrasing हुई है. Dear students, इसी white board पर दो stanzas के points की सूरत में paraphrasing नज़र आ रही है. Stanza number 3 and stanza number 4. Stanza number 3 is, it moves us not, great God, I'd rather be a pagan shackled in a creed outworn, so might I standing on this pleasant lea have glimpses that would make me less forlorn. What did I write on the whiteboard for the ease of
your mind, for the satisfaction of your mind, are related to this very stanza. I have written and I have mentioned 4 points is I wrote for the first 2 stanzas. Point number first is no impact because of the word. It moves us not. It has no effect on us because we are busy in the world. We are busy in our daily routine. We are busy in the earning of money. हमारे पास नेचर को एंजॉय करने का टाइम नहीं है. हम अपने दुनिया में मसरूफ़ होकर, हम अपने मसरूफियात में इतने एक किस्म का मदहोश किस्म का सिनारियो हमने पैदा की है कि हमें नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, फ़िज़ा, हवा, बारिश, बागात, जंगलात, जितने भी फल पौधे, उससे हमने टाइम नहीं लिया है. और उसी की खूबसूरती और उसी की मिठास जो हकीकत में मौजूद है हम पर किसी किस्म का असर नहीं रखता. और वो असर क्यों नहीं रखता? क्योंकि हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई है. और हम तवज्जो के लिए क्या करते हैं? प्रे टू गॉड फॉर अटेंशन, फॉर द डाइवर्शन ऑफ अटेंशन, ताकि हमारा सोच, हमारा जो फ़िक्र, हमारा जो जहन में किस्म का तस्वीर है कि दुनिया और दुनिया से ही हम जिएंगे. एक शायर फरमाते हैं कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से. शायर भी यहाँ पर खुदा को याद करते हैं इस माहौल में कि हम जो दुनिया में लुथड़ी हुए हैं, हम जो दुनिया की गलाजत में मसरूफ़ हैं, गंदे हुए हैं, रब से दुआ है कि हमारे तवज्जो हटा दो. हमें ये नहीं चाहिए. हमें ये चैन और सुकून जो हम सोचते हैं, that is not in reality. Word is something else. We are going on the direction which we must not go on. Next point क्या है? Demands. रब से demands है. और demands क्या है? कि हमें बना लो, हमें सही रास्ता दिखा दो. और सही रास्ता बनाने के लिए क्या करना चाहिए? Attention चाहिए. और आगे क्या है? कि have glimpses that would make me less fallen. हम शायद हम चाहते हैं कि हमारा कंडीशन इस तरह हो जाए जो एक किस्म का तस्वीर और जो हम पर मुख्तलिफ किस्म के लोग गुजर रहे हों. स्टेंजा नंबर 4 की सिर्फ 2 ही लाइन्स हैं और वो लाइन्स क्या है? हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, आर हियर ओल्ड ट्रेटन ब्लो हिज रिड हॉर्न. यहाँ पर ग्रीक मिथोलॉजी से, यूनानी हिस्ट्री से 2 खुदाओं का तस्करा किया है और दोनों खुदाओं का तस्करा इस बुनियाद से की है कि वो दोनों पावरफुल थे उसकी नज़र में क्रिश्चियनिटी के दौर में. क्लियर? वहाँ पर इस तरह हुआ करता था कि हर चीज़ के लिए एक खुदा, एक आका और एक बड़े का तस्वर किया जाता था. यहाँ पर भी है. जो यहाँ पर प्रोट्यूस है, एंट्रेटन है, ये दोनों खुदाओं का ये इमेजेस बयान की गई है. एंड दे वर द गॉड्स, स्मॉल GODS, समंदरों की तरफ इशारा है, समंदरों की खुदा थे. तो वहाँ पर क्या है? इसमें सिंपल ये है, प्रे टू गॉड्स. कौन से गॉड्स? जो समंदर वाले गॉड्स थे. क्लियर? दीज वर दी जस्ट पैराफ्रेजिंग. अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसी के हवाले से वो जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए हम उसूल पहले से मैंने बयान किए हैं. मैं ज़रा दोबारा आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ कि उसकी उसूल क्या है. याद रखो स्टूडेंट्स, पैराफ्रेजिंग के लिए जो मैंने रूल्स बताए थे वो तो सिंपल है. सिंपल लैंग्वेज में अगर हो सके तो सिनोनिम्स लिखो, नहीं है तो आसान अल्फाज में लिखो. अपने आप से कुछ मेंशन नहीं करना है. क्लियर? और जितना पूछा गया है उतना ही मेंशन करना है. ठीक? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में
तीन अशिया ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट रेफरेंस से क्या मुराद है कि ये पोएम किसने लिखी है और इसका टाइटल क्या है। सेकंड कॉन्टेक्स्ट में थीम का जिक्र करना है। और लास्ट में एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में ये करना है, ये बताना है कि इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इसमें वो क्या फरमाते हैं, तो इसी का तस्करा करना है। तो यहाँ पर स्टेंजा नंबर फर्स्ट जो है मैं ज़रा दोबारा रीड करता हूँ और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसका सोल्यूशन निकालता हूँ। द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गैरिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, our sordid boon. इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर के आशिक थे, नेचर पर फिदा थे, नेचर को मांगते थे, डिमांड करते थे, एक इस तरह भी एक राइटर ने लिखा है कि नेचर इज माई टीचर, नेचर इज माई हॉबी, नेचर इज माई फ्रेंड। और एक्सट्रीम पोजीशन में वो बंदा क्लाइमेक्स में पहुंचा है और कहता है वर्ड्सवर्थ की मुंह से कि नेचर इज माई गॉड। यहां पर क्या है कि हमें दुनिया ने इतना अपने साथ लेकर हमें मसरूफ किया है कि हमें ब्यूटी को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता। और ये भी है कि जितने हमारे पास अशिया है, ख्वाह हम जवान है या बूढ़े हैं, इवन मरते दम तक ये हमारे लिए काफ़ी है। दीज थिंग्स आर इनफ फॉर अस। अगर हम और दूसरा किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो हमारी दुनियावी चीज़ें हमें इजाज़त नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। इन दिस स्टेंजा यू विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ डिटेल। सेकंड स्टेंजा क्या है? सेकंड स्टेंजा है कि दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none. इसी स्टेंजे में शायर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी खूबसूरती का तस्करा करता हुआ कुछ यूँ फरमाया है कि मेरे जो दिन है, मेरी जो जिंदगी है, एक ख्वाबीदा और एक ख्वाब जैसा है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे जो उम्मीद है वो कहाँ पर उड़ गए हैं। मुझे ये पता नहीं चलता कि ये रात है, ये सुबह है, ये अभी एक तस्वीर है या कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो। और मैं क्यों इस तरह हूं? क्योंकि हम दुनियावी गलाजत में इंतहाई मसरूफ है। क्लियर? तो इसी को बरकरार रखती हुए लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट बोर्ड। वहां पर हाँ याद रखो, बाकी जो स्टेंजेस हैं उसी के लिए भी ये 3 पॉइंट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। रेफरेंस में 2 चीज़ें, पोइट का नाम, पोइम का नाम, कॉन्टेक्स्ट में थीम, और एक्सप्लेनेशन में जो इस पोइम की एक्सप्लेनेशन है वो करना इंतहाई ज़रूरी है। तो लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ द स्टेंजास। In this second stanza I have said over there, मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया पिछले बोर्ड पर, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन और रीड करने की कोशिश करूँगा। that my days have been a dream, yet if hope has flown away, in a night or in a day, in a vision or in none. This is all about for second stanza। और इसकी एक्सप्लेनेशन ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई उम्मीदों की तरह है। ज़िंदगी के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया दरपेश होते हैं उसके या उसी का तस्वीर पेश करने के हवाले से शायर ने मेंशन किया है। स्टेंजा नंबर 3 क्या है? इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी अ पेगन सेटल्ड इन अ क्रीड आउट ऑन, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉलन। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही लिखना है। एक्सप्लेनेशन में ये बताना है कि दुनियावी अशिया के असरात हम पर नहीं है। हम अपने दुनिया में इतने मसरूफ़ हैं, रब ज़ुल जलाल से दुआ की जाती है कि हमें एक ऐसा चीज़ बना दे कि या तो हमें इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ करो, या हमें ऐसे बना दो कि इन चीज़ों की तरफ हमारा
किसी किस्म का तवज्जो ना हो। अगर हमने अपने आप को इस कंडीशन में नहीं बनाया, अगर हमने इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए सोच भी छोड़ दिया, then we have no life। और फिर क्या होंगे? So might I standing on this pleasant day, और ये इस कश्मकश में हूँ कि मैं इसे एंजॉय करूँ या एंजॉय नहीं करूँ। तो याद रखो, विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी तकरीबन पोएम्स हैं वो सारी नेचर को एक्सप्लेन करना, नेचर को डिस्कस करना और उसी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ही प्रेजेंट की है, और उसी ने आगे सहारा लेकर नेचर के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें डिस्कस की है। लास्ट स्टेंजा क्या है? हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, आर हियर ओल्ड ट्रेटन ब्लो हिज रिटन हॉर्न। इसमें इन दो लास्ट कपलेट में जो फाइनल है वर्ड्स है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ फरमाते हैं कि हमने दुनिया को तो एंजॉय नहीं किया, ग्रीनरी, ब्यूटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को एंजॉय नहीं किया। खुदा और उस वक़्त की खुदाओं से दुआ की जाती है, दुआ वो करते हैं कि समंदरों से उठ जाओ। हवाओं के खुदाओं से भी किस्म का इशारा है कि आप वहां से आ जाओ, हमें लेकर जाओ, हमें एंजॉयमेंट देने का मौका फराहम करो, हमें वो दिखा दो जो हकीकत में हमारे वजूद, हमारे जहन, हमारे जिसामत की रिक्वायरमेंट है। हमें वो नहीं चाहिए जो हम करते हैं, हमने वो किया जो हम चाहते थे, आगे हमें नहीं चाहिए। और क्या है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, वो मंजर, और ये क्या है? समंदर का खुदा तस्वर किया जाता था। तो उसकी तरफ इशारा करती हुई इसने कुछ यूं बताया है। और आगे वो क्या फरमाते हैं? आर हियर ओल्ड ट्रेटन ब्लो हिज रिटन हॉर्न, और वो ऐसा एक किस्म का ये यहाँ पर अगर मैं इस्लाम की तरफ लेकर जाऊँ आप लोगों को, तो एक ऐसी हारन जिसको इसराफील अलैहिस्सलाम की जो आप लोग आवाज़ या उसकी जो लास्ट बांसुरी का बजाना है वो अगर बजाए, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमें खूबसूरती का टेस्ट दिखा दो, अगर वो नहीं दिखाना है हमें इस दुनिया से ले जाओ, हमें इस दुनिया में मज़ीद रहने की ज़्यादा वी डू नॉट डिमांड। क्लियर? तो इस किस्म की पोएम्स को इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पोएम के हवाले से जितने भी पैराफ्रेज है या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो एक्सप्लेनेशन हमने की, आप लोगों के जहन में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आए होंगे, और इसी पोएम्स और इसी लाइन्स को आपको चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, देन यू विल सी, यू विल एंजॉय कि व्हाट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर भी हो खुश रहो। खुदा हाफिज़।